हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे डायमेंशनल फॉर्मूले कवर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि ये इतना सारा जो हमने झंझट किया वो क्यों किया, वाई दिस डायमेंशनल एनालिसिस इज़ यूज्ड एंड व्हाट आर इट्स मेन यूजेस। सो चेक ऑन द बोर्ड, आई हैव रिटन it has three main uses. First is the homogeneity of dimensions in an equation. जैसे आपको एक इक्वेशन मिलता है फिजिक्स में, तो आप कैसे चेक करेंगे whether that equation is incorrect or correct? तो कैसे चेक करेंगे आप? उस मेथड को बोला जाता है होमोजेनिटी। होमो मीन्स सेम, एंड ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशन सेम होंगे सिर्फ उनको ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम छोटे थे तब से हमको सिखाया हुआ है कि मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप किन क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशन सेम हो। सपोज मैं बोलूँ एरिया प्लस लेंथ, और एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी, और फोर्स प्लस वर्क, और एनर्जी माइनस वेलोसिटी। तो all these terms are absurd terms, they are not allowed in dimensional analysis. हाँ, velocity plus velocity, power plus power, force plus force, voltage plus voltage, current plus current, all are allowed because all are homogeneous quantities. Second is conversion of units. Suppose you are pursuing a continue research in India and now for the further studies you want to go to abroad in particular country and there a specific unit is used, तो आपको पूरा का पूरा अपना जो थीसिस है वो यूनिट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे. सो दैट यूज इज़ डन बाय डायमेंशनल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. इट सजेस्ट दैट always a unit is associated with a number and that number is always inversely proportional to the unit. It means suppose मैं बोलूँ 1 meter equal to 100 centimeter, 1 meter equal to 100 centimeter, तो definitely meter is a larger unit, तो उसका मल्टीपल स्मॉल होगा, एंड सेंटीमीटर इज़ स्मॉलर यूनिट, तो उसका मल्टीपल लार्ज होगा. तो जैसे जैसे यूनिट लार्जर होगी द मल्टीपल विल बी गोइंग स्मॉलर. नाउ द थर्ड क्वांटिटी और थर्ड यूज इज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज recapitulation of a physical formula with the help of dimensional analysis. इसमें आपको कुछ क्वांटिटीज़ गिवन होंगी जिनके ऊपर एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है और आपको उस बेसिस पर एक फॉर्मूले को डिराइव करना है. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डूइंग ओनली द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. सिर्फ फर्स्ट यूज़ करके then second and third use will be done in next videos. So first use is written here. Homogeneity means quantities having same dimension. इसको हम लोग करके देखते हैं न्यूमेरिकल से. So write first question. Test whether b square equal to u square plus 2ax is dimensionally correct or not. इसमें सिम्बॉल्स के मीनिंग्स, वेलोसिटीज़ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा, ये कि u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ फाइनल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन एंड x इज़ डिस्प्लेसमेंट. अब 2 is a pure number shown in previous video, so it will be dimensionless. So put all the dimensional formula of 4 quantities with their powers very carefully. So this is the equation
This is not correct equation, but this is dimensionally correct equation that we can prove. So for velocity L1t minus 1 square, again for velocity, क्योंकि initial हो या final हो, है तो velocity, this is L1t minus 1 square plus acceleration is L1t minus 2, displacement is only L1. Now check, this is all L2t minus 2, so including power L2t minus 2 equal to L2t minus 2 plus L2t minus 2. Now take careful note, if two dimensional brackets are added, they should be of same dimensions, that is the principle of homogeneity. But as in algebra, जो आप maths पढ़ चुके हैं, as we write x plus x equal to 2x, but in this L square t minus 2 plus L square t minus 2 is not twice of L square t minus 2, because already we have spoken that any pure number is dimensionless. So what is, so this is again not 2, it is L square t minus 2. Now compare LHS and RHS, they are dimensionally equal, so the given equation, which was the third kinematical equation, is dimensionally correct. Now going on first use, homogeneity in dimensions means that dimensions should be same for different physical quantities. Question number 2 is, check whether S equal to ut plus half at square इज करेक्ट और नॉट नहीं पूछा जाएगा आपको, डायमेंशनली करेक्ट और रॉन्ग. अगेन इग्नोरिंग दिस हाफ बिकॉज इट इज़ अ प्योर नंबर, हेंस इट इज़ फुल्ली डायमेंशनलेस. द सिम्बल्स कैरी द मीनिंग, स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं बेटा आप, ये स्केलर फॉर्म में ये मीनिंग्स हैं इनके. पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, सो अभी आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, हाफ को रिमूव करके, हाफ रिमूव कर दिया हमने. पुटिंग डायमेंशंस ऑफ ऑल क्वांटिटीज, दिस इज ओनली डिस्टेंस, इट इज वेलोसिटी, सो L1t minus 1 for time t plus for acceleration, this is L1t minus 2t square. Now solve it completely by adding powers of similar bases. जैसे आप यहाँ t के powers -1 plus 1 करेंगे, so it is 0. Over here -2 plus 2, it is also 0. So we get overall L. आप चेक कर सकते हैं अगेन, एज इन एल्जेब्रा x plus x is 2x, but in dimensional analysis L plus L is never 2L, because 2 is a pure number, hence dimensionless. So L plus L is also L. So the dimensions of LHS is same as RHS. So the given equation is dimensionally correct. Question third is, if S equal to A plus BT plus CT square plus DT cube, then find the dimensional formula for A, B, C and D. Symbols meanings are given to you. Now question 3 is very important for NEET और JEE. Similar type के questions आते हैं, ध्यान रखेंगे. प्लस प्लस लगाया हुआ है अगर, तो सारी की सारी quantities homogeneous हैं. So the question is given, if S is equal to A plus BT plus CT square plus DT cube,
Find the dimensions or dimensional formulae of A, B, C and D where all are constant. S is used for distance, T is used for time. So using homogeneity, so LHS is distance, only L equal to A plus BT plus CT square plus DT क्यूब. तो अगर इन चारों के डायमेंशंस सेम होंगे तभी तो यहाँ बीच में प्लस किया होगा. ये तो बिल्कुल लॉजिक लगाने वाली बात है. इट मीन्स एंड L लेफ्ट साइड में लेंथ होगा तो डेफिनेटली इक्वल टू के बाद राइट साइड में भी लेंथ होगा. ठीक है, लॉजिक लगाने वाली बात है. तो सबसे पहले आपने बोला L इक्वल्स टू A. सो दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर A. कुछ एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि यूनिट निकालो आप A की, तो द यूनिट ऑफ A इज़ मीटर. अब सेकेंड क्वांटिटी से इक्वेट करेंगे, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, ऐसे 4 कॉलम्स बना लेंगे हम. सो L इक्वल्स टू सेकेंड क्वांटिटी BT. So the dimensional formula of B is L1 T minus 1 because this T will be shifting cross downwards. So the SI unit of B is meter per second. आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि B क्या है, तो आप बोलेंगे कि B वेलोसिटी या स्पीड है. थर्ड आता है आपके पास CT स्क्वायर, ये भी तो लेंथ होगा. सो लेंथ इज इक्वल टू CT स्क्वायर. सो C इज इक्वल टू T स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा, L1 T माइनस 2. C का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? एक्सिलरेशन हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज L इक्वल टू DT क्यूब. सो दिस इज L1 T minus 3 equal to D. Both are homogeneous. D का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यूब. सो इस वे में हम चारों के डायमेंशंस निकाल सके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज चेक करेक्टनेस ऑफ H इक्वल टू 2S cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो G. अब बच्चों आपको बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में ऐसे मिलेंगे विच आर नॉट नोन टू यू, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है. न्यूमेरिकल में आपको सारे सिंबल्स गिवन होंगे. सो आपको यहाँ क्वांटिटीज़ के मीनिंग्स दिए हुए हैं. हाइट, सरफेस टेंशन, रेडियस, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब रेडियस किसकी है, डेंसिटी किसकी है, आपको 11th स्टेज में नो नीड टू थिंक अबाउट. जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर में पहुँचेंगे तब आपको ये फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन एंड एक्सप्लेनेशन है इन स्टैंडर्ड 11th. So on side I have written the basic formula of surface tension, force by length, acceleration equal to S by T square, density equal to mass upon volume, and 10th में आप cos theta पढ़ चुके हैं. in a right triangle base divided by hypotenuse, that is length upon length. तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशन लेस ही होगा. अब इसमें से सबसे पहले आप नंबर को रिजेक्ट कर दो एज वेल एज फंडामेंटल क्वांटिटी को सर्कल कर दो. तो नंबर को हमने डायमेंशनली रिजेक्ट कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोगों ने सर्कल कर दिया. दिस इज़ ऑल्सो डायमेंशन लेस, तो इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया. नाउ वी आर चेकिंग डायमेंशनली जस्ट फॉर S अपॉन R रो G. ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन रिड्यूस. So I am putting formulae for all, basic formulae. Surface tension is force upon length, radius is length, density mass upon volume, and acceleration S upon T square. अब ये जो सबसे लास्ट डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है, इनको आप सबसे ऊपर भेज देंगे. एंड पुटिंग डायमेंशंस टुगेदर,
सो दिस इज फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L क्यूब, टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T स्क्वायर डिवाइडेड बाय L square. So this is L square into this is also L. So it will be L cube into mass. ये आ गया. अब पूरे so this is all overall fraction. तो इसमें से हम देख सकते हैं L cube will cancel, but cancellation फिर से बेटा दिखाना नहीं है. So m cancel, L cube cancel, -2 + 2 cancel. So what remains only L1 और LHS में भी हमारे पास क्या था L1. So what will be your answer in last? This given equation is dimensionally correct. So in next session we will be doing use number 2. Thank you.